Consider.
Good morning, everyone. Good morning. This is Dr. Kamini Shah, Associate Professor, Department of Business Studies, Sardar Patel University. I welcome you on behalf of Department of Business Studies and on my personal behalf to this lecture on research and publication ethics. Hopefully everybody is aware about this course, 2-credit course, which UGC has made mandatory, that is research and publication ethics. We all have taken a step forward in the direction of research, and that is why we believe it is necessary for all of us to be cautious, rather to be extra cautious when we pursue our research journey and we give any of our papers for publication. We take extra precautions and to minimize similarity and plagiarism, maybe possibly in single digit, or our target should be 0. With this aim, department has organized a webinar today, Research and Publication Ethics. I instruct all participants to put their questions in the chat box at the end of the session. It will be taken up. Now I invite Dean and Head Professor Sandeep Bhatt to welcome and introduce today's resource person. Sir, over to you. Thank you.
As per instructed by my colleague Dr. Kamini Shah, I heartily welcome to today's speaker, Dr. Sisir Mandalia sir. He is a librarian of Sardar Patel University, Bhaikaka Library, Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar. Sir's professional experience, more than 18 years in library science, 5 books published, more than 20 papers published in national and international journals, deliver in various HRDC of Gujarat state lectures by Sir. 5 students completed PhD under his guidance and 4 students are pursuing PhD under the guidance of Sir. He delivered many lectures in various national and international conferences and seminars. Sir is expert in selection committee of various University of Gujarat and other states. Sir is a good human being with helping nature. Behalf of Sardar Patel University and behalf of my department, I heartily welcome to Sisir Mandalia sir. I also congratulate to organize this type of event by PG Department of Business Study, and today's special thanks, not a thanks but congratulate to Dr. Kamini Shah, my colleague in this juncture. Sir, please. Thank you, Bhatt sir. Before we start our session, I really thankful to PG Department of Business Study to give me opportunity or platform to share some my point of view on ethics in research and publication. पहले तो मैं सबसे ज्यादा इस बात की खुशी महसूस करता हूं कि आज जो यूजीसी ने गाइडलाइन डिक्लेयर किया है कि जो पीएचडी रजिस्ट्रेशन करने से पहले कंपलसरी हमें एक कोर्स वर्क कंप्लीट करना होता है. तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स वर्क वी मे रजिस्टर एज ए पीएचडी स्टूडेंट. या तो इसके लिए जो कुछ गाइडलाइन यूजीसी ने डिक्लेयर किया है, कुछ कोर्स वर्क अप्रोक्सीमेट 13 आवर का उन्होंने जो कोर्स वर्क फ्रेम किया है, उसमें 15 आवर्स है वो प्रैक्टिकल के हैं और 15 आवर्स है वो थियरी के हैं. तो मेजोरिटी जो रिसर्च है हमारा, तो रिसर्च कैसे करते हैं और रिसर्च करने के बाद उसका जो हम पब्लिकेशन सोसाइटी के लिए उसका जो बेनिफिट होता है वो कैसे करते हैं, वो करने के लिए एक जो हमारा एथिक्स होता है, वो एथिक्स एक्चुअली क्या होता है उसके बारे में कुछ गाइडलाइन यूजीसी ने प्रोवाइड की है. तो उसमें से कुछ जो जनरल एथिक्स है एज ए रिसर्चर और एज ए पब्लिशर या पब्लिकेशन एज ए ऑथर, हमें क्या क्या बाबतें और खुश ध्यान में रखनी चाहिए, उसकी कुछ बातें मैं यहाँ पर आपसे मैं शेयर करूँगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी स्टार्ट, व्हाट इज द एथिक्स? What is the ethics और what is the research ethics? आप सबको तो पता ही है कि एथिक्स का मीनिंग होता है कि अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ethics are moral principles that govern a person's behavior or the conducting of an activity. तो ये एक जनरल एथिक्स की बात हो गई कि भाई जो मेरा बिहेवियर होता है, जो हम एक्टिविटी करते हैं, वो बिहेवियर के ऊपर जैसे कंट्रोल कैसे करते हैं, उसमें कुछ प्रिंसिपल होते हैं, उसको हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू वी आर कॉलिंग द एथिक्स. बट इन रिसर्च एथिक्स is specifically interested in the analysis of ethical issue that are raised when people are involved in participations in research. जब कोई पर्सन या रिसर्चर कोई रिसर्च में एसोसिएट होते हैं
तो उस समय उसको क्या क्या एथिक्स को फॉलो करना चाहिए उसके बारे में एनालिसिस करके हमें जो बताते हैं उसको हम रिसर्च एथिक्स कहते हैं। तो ये एक जनरल डिफाइन था कि एथिक्स और रिसर्च एथिक्स कुछ इसमें ज्यादा नहीं होते, जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। एथिक्स मीन्स मॉरल कंडक्टिंग गवर्न एक्टिविटी टू कंट्रोल हाउ टू बिहेवियर ऑफ आवर साइड टू सोसाइटी और एज ए रिसर्चर। पहले जो हमारा इश्यू था कि भाई हमें क्या करना चाहिए कि एज ए कोई रिसर्च कंप्लीट करने के बाद या जब हम कोई उस रिसर्च के रिगार्डिंग कोई पेपर पब्लिश करना चाहते हैं या हमारा कोई रिसर्च आउटपुट या रिपोर्ट या प्रोजेक्ट जब हम पब्लिश करना चाहते हैं तो उसमें कुछ एथिक्स होने चाहिए। तो वो एथिक्स कैसे होते हैं और क्यों करना चाहिए, तो इन सब के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफिंग पॉइंट बाय पॉइंट हम करेंगे। तो क्या क्या होता है, तो जनरली जब हम कोई पेपर या कोई अपना रिसर्च पब्लिकेशन करते हैं तो मेजॉरिटी इन आवर पेपर वी मे कॉज सम प्लेजरिज्म, मे बी सम research fraud is also included, some undisclosed competing interests are also in this our paper या which are published in various journal। तो ये जो थोड़े से इश्यू है वो इश्यू जो हमें रिसर्च पब्लिकेशन करते समय ध्यान में रखते हुए उसको मिनिमाइज करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो रिसर्च आउटपुट होगा वो एकदम कॉन्क्रीट होगा। इसको हम एज ए सोसाइटी में जो रिसर्च का हमारा मेन एम है कि फ्रूटफुल सोसाइटी बिल्ड करना है, हमें अपने नेशन को आगे बढ़ाना है, तो ये सारी चीज अपने रिसर्च के डिपेंड सी होती है। तो whether you are just starting out in your career or a more seasoned researcher, you are no doubt very much aware of the importance of the ethical conduct। जब आप अपनी कैरियर स्टार्ट करते हैं या एज ए रिसर्चर आप एक कॉन्क्रीट अपना रिसर्च जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप जो रिसर्च के एथिक्स है उसके बारे में कंप्लीटली अवेयर होने चाहिए। कभी हमने देखा है इन प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू कि कहीं जगह पे हम कोई रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर हम जब चेक करते हैं या उसको जब ऑनलाइन पे या दूसरी जगह पे या पब्लिकेशन के थ्रू इसको स्टडी करते हैं तो उसमें कई सारे प्लेजरिज्म हमें दिखाई देता है, कभी कभी रिसर्च फ्रॉड भी उसमें दिखाई देता है। तो ये सारी बातें हमें जब रिसर्च स्टार्ट करना है उससे पहले रिसर्च एथिक्स के बारे में हमें क्लियरली पता होना चाहिए। कुछ मैंने बताया कैसे इश्यू होते हैं रिसर्च में। तो जैसे पहले प्लेजरिज्म मैंने बताया कि प्लेजरिज्म होता है, रिसर्च फ्रॉड होते हैं। रिसर्च फ्रॉड में मीन्स उसमें 2 टाइप्स के होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊं कि भाई एक्चुअली उसमें क्या होता है। दूसरा होता है अनडिस्क्लोज कंपीटिंग इंटरेस्ट होता है। तो ये सारे कुछ इश्यू है। तो ये इश्यू को हम अपने पब्लिकेशन में इतने कम कर दे, मिनिमाइज करेंगे जिसने हमारा रिजल्ट जो आएगा वो एकदम एक्सपेरिमेंट और ट्रूथ बेस्ड होगा। और एक दूसरी बात, अगर आप एथिकल बाउंड्रीज जो होती है उसके जो रूल्स होते हैं, एथिक्स के रिसर्च के जो रूल्स होते हैं, आप उसको एक बार समझ लेंगे तो आपकी जो सक्सेस रेशियो और एज ए रिसर्च आउटपुट है वो आपको एक
हाई पिक पे ले जाएंगी कि वहां आपको पहुंच नहीं पाएगा, कि आपका जो कॉन्क्रीट रिसर्च आउटपुट आया है वो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन और ऐसे ट्रूथ आया है। तो इससे आपको कई सारे बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहले उसमें मैं बात करूंगा ऑथरशिप। जनरली वी आर ऑल्सो नो कि व्हाट इज द ऑथर। when we are publish a paper, author is mentioned in our paper. So naming authors on a scientific paper ensure that the appropriate individuals get credit and are accountable the research. जो कोई पेपर पब्लिश करता है तो उसकी सारी क्रेडिट वो जो रिसर्च पेपर के जो ऑथर है उसको मिलता है, और जो भी उसके रिलेटेड कुछ भी इश्यू या मैटर या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो भी उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आएगा उसके लिए भी ये ऑथर ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। Deliberately misrepresenting of scientific relationship to their work is considered to be form of misconduct that undermines confidence in the reporting the work itself. अगर हम जानबूझ के उसका मिस रिप्रेजेंटिंग करेंगे तो उसका जो हमें परिणाम पे कुछ ज्यादा ही इफेक्ट होता है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो डिफरेंट होगा और कुछ मिसकंडक्ट भी हो जाएगा। वैसे ऑथर की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन तो है नहीं, बट जनरली हम ऑथर को ऐसे बोल सकते हैं कि भाई सिग्निफिकेंट इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी। एज ए ऑथर you must be significant some intellectual work to contribute to the study is called the author. It is a general definition. No specified definition is available of author. एक और दूसरी बात बताता हूं। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर, उन्होंने एक ऑथरशिप के लिए जो एक गाइडलाइन क्रिएट की है कि भाई किसको हम ऑथर बोलना चाहिए। तो वो गाइडलाइन से हिसाब से हमें देखे तो ऑल पर्सन्स डेजिग्नेटेड एज ऑथर शुड क्वालिफाई ऑथरशिप एंड ऑल दोज हु क्वालिफाई शुड बी लिस्टेड। तो ये ऑथरशिप की डेफिनेशन इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर ने दी है। तो इस हिसाब से हम ऑथरशिप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी ओर ये भी बता सकते हैं कि एनीवन हु कंट्रीब्यूट द रिसर्च और मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपरेशन बट इज नॉट एन ऑथर शुड बी एक्नॉलेज विद देयर परमिशन। बिफोर वी स्टार्ट आवर रिसर्च we are not known about the result of the research. So when you write some paper, your role may be as a author, as a contributor or as a acknowledge. तो ये तीनों के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए और स्पेशली उसको आइडेंटिफाई करके यू कैन हाईलाइट these three things in your paper. Submission by anyone other than one of the authors will not be considered. अगर आप ही पेपर के ऑथर है तो you are the authority to submit your paper to various publication for the journal या etc. But any other person are not allowed to submit this paper as a author. As a author,
4 criteria must be in this characteristic. What is this? First of all, substantial contribution to the conceptual and design the study. तो एज ए ऑथरशिप ये एक जो डिजाइन और कंसेप्शनल स्टडी जो होता है उसमें उसका एक कंट्रीब्यूशन होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए very essentially criteria for the author to substantial contribution to conceptual and design the study. Data acquisition, data analysis and interpretation of the data is also criteria for the author. Drafting or revising the article for intellectual content is also criteria for the author. Approval of the final version and agreement to be accountable for all aspects of the work related to the accuracy or integrity of any part of the work. तो ये जो चारों पिलर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑथर्स के, वो ऑथर को ये चारों चीज उसमें साथ में लेकर चलना है. ऐसा नहीं होता कि चलो आपने एक बार पेपर लिख दिया, आपने रिसर्च पब्लिकेशन कर दिया तो आप फ्री हो गए. ऐसा नहीं है. आप देखते हैं कि कई बार आपका पेपर जो आप पब्लिश करने के लिए वेरियस पब्लिशर को भेजते हैं तो वो रिवाइज करने के लिए भी वापस आता है, फिर कॉपीराइट फॉर्म के लिए भी आता है. तो ये सारी चीजें आपको एज ए ऑथर खुद करनी चाहिए और वो पेपर से रिलेटेड जो भी इश्यू या क्रेडिट है वो एज ए ऑथर आपको मिलता है. तो ये एक बात थी ऑथर की. दूसरा एक इश्यू आता है कंपेटिंग इंटरेस्ट. इसको हम कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट भी कई जगह पे ये बोलते हैं. तो when an investigator, author, editor or reviewer has a financial or personal interest on belief that could affect his or her objectivity or inappropriately influence his or her action as a potential competing interest exists. तो आप जब अपना रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च के टाइम आपका कोई कंपेटिंग इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. कंपेटिंग इंटरेस्ट अगर आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी को या किसी डेटा को इफेक्ट करता है तो इससे आपका जो रिजल्ट होता है वो डिफरेंट हो जाता है. तो जो आपके मेन ऑब्जेक्टिव है या मेथोडोलॉजी है इसको कोई भी टाइप के कंपेटिंग इंटरेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टेड नहीं होना चाहिए. सच रिलेशनशिप आर ऑल्सो नॉन एज ड्यूअल कमिटमेंट्स, कंपेटिंग इंटरेस्ट और कंपेटिंग लॉयल्टीज. तो ये बात आपको खास ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आप कोई रिसर्च वर्क या रिसर्च पेपर या कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आपका कोई भी टाइप का कंपेटिंग या कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. मेजोरिटी 2 टाइप के कंपेटिंग इंटरेस्ट हम देखते हैं. एक जनरली होता है फाइनेंशियल रिलेटेड होता है और दूसरा होता है पर्सनल बेस पे होता है. तो ये दो जो इंटरेस्ट है फाइनेंस और पर्सनली, ये दोनों आपके रिसर्च पे कोई भी टाइप डेटा या मेथोडोलॉजी या ऑब्जेक्टिव या हाइपोथेसिस या कंक्लूजन उसके ऊपर इफेक्टिंग नहीं होने चाहिए. ये दो तो मैंने बताए कि चलो फाइनेंशियल या पर्सनल
जो आपका कंपेटिंग इंटरेस्ट है, लेकिन और भी कई सारे कंपेटिंग इंटरेस्ट होते हैं, जैसे पॉलिटिकली भी होता है, एकेडमिकली भी होता है, कॉमर्शियल भी होता है, और इंटेलेक्चुअल पैशन। तो ये भी सारे जो इंटरेस्ट है वो आपके रिसर्च पर इफेक्ट करते हैं, और आपका जो ऑथेंटिक और ट्रस्ट बेस्ड जो रिसर्च होता है उसमें से आपको वेरी रिजल्ट आपका हो सकता है। तो ये चीज़ भी आपको खास ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके जो ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, हाइपोथेसिस, जो भी आपके पॉइंट है, इसके ऊपर किसी भी टाइप का कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मेजोरिटी हम जब देखते हैं कि आजकल जो बर्निंग इश्यू है वो है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म में कई सारे बातें हम देखते हैं। यूजीसी ने गाइडलाइन भी डिक्लेयर की है 2018 में कि भाई कितने परसेंटेज प्लेजरिज्म को आप अलाउ कर सकते हैं। तो ये गाइडलाइन यूजीसी ने डिक्लेयर तो किया है, लेकिन कहीं सारी इंडिया की यूनिवर्सिटी में अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी की एक अपनी अपनी पॉलिसी होती है, और उसी पॉलिसी के मुताबिक वो प्लेजरिज्म या रिसर्च एथिक्स के बारे में वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन नियर फ्यूचर इट मे बी होप कि यूनिक प्लेजरिज्म पॉलिसी which was given by the UGC are implemented in all the university of the India. क्या होता है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो इंफॉर्मेशन को वी कैन आइडेंटिफाई इट, वी कैन फाइंड इट, वी कैन एवेल्युएट, वी कैन अप्लाई इट, और वी कैन acknowledge the information. It must be. Without acknowledge, it may be cause some problem. So, what is plagiarism? As per the Association of University Professors, plagiarism is the act of telling someone else's work and attempting to pass it off as your own. This can apply to anything from term paper to photograph to song or even idea. किसी और का काम है, किसी और का जो आइडिया है, किसी और का जो रिजल्ट है, वो आपने अपने नाम से पब्लिश कर दिया है, या किसी और का जो वर्क है उसको क्रेडिट दिए बिना ही you can involve in your paper, it may cause plagiarism. तो क्या होता है प्लेजरिज्म में? तो ये आप देखते हैं कि कहीं जगह पे कोई आप कॉन्फ्रेंस पेपर देखते हो, किसी जर्नल्स के लिए कोई आर्टिकल लिखता है, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट लिखता है, इसमें कॉमन होता है प्लेजरिज्म। ये भी एक एथिक्स का ही पार्ट है। मिसकंडक्ट आपका जो रिसर्च होता है तो प्लेजरिज्म उसी का एक पार्ट है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पब्लिकेशन misconduct is plagiarism. When one author deliberately use others work without permission, आप जानबूझ के किसी और का वर्क उसको क्रेडिट दिए बिना ही आप इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज करते हैं, और उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं, उसका परमिशन भी नहीं लेते हैं, तो दिस कॉल द प्लेजियारिज्म। तो क्या होता है इसमें?
तो प्लेजरिज्म में एनीथिंग मीन्स यू कैन कॉपी डेटा, वर्ड एंड phrases, ideas and concept, songs, picture, image, film, etc. You are copy without the permission of the inventor or intellectual writer. This called the plagiarism. एक और बात भी बताऊंगा आपको कि यूजीसी ने जो प्लेजरिज्म पॉलिसी डिक्लेयर की है, इसमें ये प्रोविजन भी है, जैसे उसमें कुछ क्राइटेरिया दिया है, एज ए फैकल्टी, एज ए स्टूडेंट, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द प्लेजरिज्म वी आर अलाउ फॉर द रिसर्च और रिसर्च थीसिस. इफ there are various criteria like 10%, 20%, 40, 60. अगर आपका परसेंटेज रेशियो हाई आता है एज ए फैकल्टी तो यू कैन पनिश्ड. तो उसमें पनिशमेंट भी जो हुआ है उसको डिबार्ड भी कर सकते हैं एज ए गाइड कुछ टाइम के लिए, वैसे 1 ईयर 2 ईयर के लिए. एज ए रिसर्चर में भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं कि भाई ऐसे 20% से ज़्यादा है तो आप 6 महीने तक आपकी थीसिस से आपका पेपर सबमिट नहीं कर पाएंगे. तो ये भी सारी बातें वो गाइडलाइन में यूजीसी ने डिक्लेयर कर दिया है. तो इन नियर फ्यूचर वी मस्ट फॉलो और अवेयर अबाउट द प्लेजरिज्म एंड ट्राई अवर बेस्ट टू अवॉइड दिस प्लेजरिज्म. So how we check the plagiarism? There are many types of plagiarism software are available in the world. A majority are Turnitin, Orkund, Authenticate, which are the subscribe based. And there are so many plagiarism software tools are available on net free of cost. So just first of all we check okay, what is the Turnitin. Turnitin is a plagiarism software which was the leading academic plagiarism detector and utilized by the teacher and students to avoid plagiarism and ensure academic integrity. तो Turnitin की जब हम बात करते हैं तो उसको जब हमें चेक करना है तो उसमें जो रिजल्ट या जो रिपोर्ट या उसका जो एनालिसिस आता है तो हम प्रैक्टिकली उसकी एक वेबसाइट में जाके टर्निटिन की तो वी कैन चेक कि एक्चुअली इसमें जो एनालिसिस एड्रेस आता है वो कैसे होता है. सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने एक थीसिस टर्निटिन में अपलोड की है तो उसका रिजल्ट जब आएगा तो ऐसा आपके स्क्रीन पे होगा. तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर आप व्यू कीजिए. तो व्यू करने के बाद आपको यहाँ पर सिमिलैरिटी दिखाएंगे. तो यू जस्ट क्लिक ऑन द सिमिलैरिटी, देन यू कैन go to the other window when your thesis is completely available. If there is in plagiarize, you can see the color combination. Here is the red color is indicate that these words are taken by the researcher from the outside. So when we are see the report, when we are तो वांधो नहीं, तो कल स्लाइड शो बन लेगा पहचान से. तो
आप देख रहे हैं कि जब हम कोई थीसिस या कोई रिसर्च पेपर टर्निटिन में रन करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें जो आता है, स्क्रीन मिनिमाइज करवो હોય તો એ નહીં આને બેક સાઈડ આ જોવું છે આપણે દેખાય? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका रेड कलर आपको दिख रहा है वो पूरा इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर लिखा है 64 मीन्स आपकी जो थीसिस है, सपोज आपकी थीसिस अप्रोक्सीमेट 50,000 वर्ड की है, तो 50,000 वर्ड के 64% मीन्स आप काउंट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट मोर देन 32,000 plus words are copied from the other source. If you see which source we are used and not acknowledged in our paper or thesis, you can just click here. All sources are defined here. Due to some net problem, we are delayed to loading the image or sources. Okay, just see it. The sources are shown in the right side of below the all sources. So these are the mentioned sources which you are collect data or phrase or word from this website. तो ये जो मैंने आपको दिखाया है एक डॉक्टरल थीसिस का है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि कई बार जैसे ये इसमें 64 है तो हमें लगता है तो ये पूरा प्लेजराइज है, ये 64% ये तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक बार आपको बताता हूँ कि आपको सोर्स में पहले चेक करना होता है कि ऑलरेडी दिस थीसिस विल बी अपलोडेड in Turnitin. If yes, you can check the all sources. So just you are check and to know this thesis is already uploaded in Turnitin. So you can remove this source from your tools. Then after you get the result is your plagiarism report. तो ये जो मैंने आपको बताया है ये टर्निटिन का जो प्रोसेस है और उसका जो आउटपुट आता है रिजल्ट का, तो उसमें जो सोर्स डिटेक्ट होता है या आपका जो सेल्फ प्लेजरिज्म होता है, तो आपको ये क्लियरली मेंशन कर देना चाहिए कि भाई ये जो आपने रिसर्च या पेपर या थीसिस जो भी अपलोड किया है उसमें आपका सेल्फ प्लेजरिज्म भी है, तो वो भी आप प्लीज चेक कर लीजिए। तो इससे हम ये जो सेल्फ प्लेजरिज्म वाला जो पोर्शन है जो सोर्स में डिटेक्ट होगा, इससे प्लेजरिज्म आपको थोड़ा हाई दिखेगा, इसको हम रिमूव कर सकते हैं और आपका एक्यूरेट प्लेजरिज्म रिजल्ट जो आता है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी टर्निटिन की बात। दूसरा एक सॉफ्टवेयर है ओरकुंड। तो आपको पता ही है कि ऑल ओवर इंडिया में जो इम्प्लीमेंट सेंटर है, जो एक यूजीसी की संस्था है, उन्होंने इंडिया की सभी यूनिवर्सिटियों को ये फ्री में ये सॉफ्टवेयर दिया है। तो जब कोई यूनिवर्सिटी में रिसर्च या थीसिस कोई पब्लिश करने के लिए आती है या सबमिट होने के लिए आती है, तो ओरकुंड के थ्रू उसको चेक करते हैं। ओरकुंड में स्टूडेंट्स के लिए भी अकाउंट ओपन करने की प्रोविजन है, फैकल्टीज के लिए भी है। स्टूडेंट अपने असाइनमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसका रिपोर्ट वो जनरेट नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट का जो राइट होता है रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, उसको उसके गाइड या रिसर्चर जो सुपरवाइजर है या फैकल्टी है,
उसका अकाउंट कंपलसरी होना चाहिए और वो स्टूडेंट का जो भी रिपोर्ट जनरेट होता है प्लेजरिज्म का, वो उसके गाइड के अकाउंट में या उसके जो वैलिड ईमेल होता है उसमें वो रिपोर्ट आ जाता है। तो ये ओरकुंड ऑल ओवर इंडिया की सभी यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर किया जाता है। पहले टर्निटिन देते थे, 2-3 साल से ओरकुंड दे रहे हैं। एक तीसरा भी सॉफ्टवेयर है वर्ल्ड वाइड जो बहुत प्रेस्टिजियस है, आइथेंटिक है। वो भी पहले 3 साल या 4 साल पहले इम्प्लीमेंट दे रही थी। तो ये 3 जो स्टैंडर्ड प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर है उसके बारे में बताया। ये एक जनरल जो ओरकुंड में जब हम कोई थीसिस या कोई किसी पेपर को अपलोड करते हैं तो ऐसा एक स्क्रीनशॉट आता है और ये स्क्रीनशॉट पे हम देख सकते हैं इसमें कई सारे कलर होते हैं। तो ये आपको जो मैं यहाँ पर रिपोर्ट दिखा रहा हूँ उसमें पहले आप देखिए तो कई सारे थीसिस और पेपर यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिए हैं और ये सारे उसके रिजल्ट हैं। आपको कलर से ही पता चल जाता है। आप देख रहे हैं ग्रीन, ग्रीन मीन्स 0 या 0, 2, 1 आप देख रहे हैं, तो ये ग्रीन का मतलब है अलाउ। ग्रीन से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा आपको लाइट येलो दिखेगा। तो इट इज अप्रोक्सीमेट बिलो देन 10% या 15% इट शो द इंडिकेट लाइट येलो कलर। देन dark yellow is cause maybe more than 15%. Then one more orange color is called the 33%. Red means 51% and black means more than 90% या 100%. तो कलर से ही आपको पता चल जाता है कि आपका प्लेजरिज्म परसेंटेज कितना आता है। एक बात और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि when we are uploaded Orkunds in twice, it may result shown as a more than 90 or 70+%. Why? Because the file who uploaded by you या your work is already saved in your Orkund. तो आप जो फाइल अपलोड करते हैं तो आपकी जो पहले की फाइल है उसी से मैच करके ये आपको प्लेजरिज्म दिखाता है। तो इससे आपको क्या होता है कि जो आपका सोर्स है, पहले का सोर्स है, उसको आप रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आता है वो आपका एक्चुअली प्लेजरिज्म रिजल्ट आता है। तो मैंने आपको दिखाया एक यहाँ पर एक मैंने जो एक पेज या पेपर है, रिसर्च पेपर जो ओपन किया है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि भाई 73 मैचिंग टेक्स्ट आर इंक्लूडेड। आपको अगर पूरा पेपर देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 3 टाइप्स के आपको यहाँ पर सोर्स मिलेंगे। पहला फाइंडिंग मिलेगा, फिर सोर्स मिलेंगे और यहाँ पर पूरा आपको एंटायर डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो ये जो आपका येलो आता है कलर आपको जो दिख रहा है, तो आप राइट में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से जो सोर्स है वो सोर्स की साइड पर आपको ले जाएगा कि भाई आपने ये जो पैराफ्रेज है या जो वर्ड है या जो डेटा है या टेबल है या कोई इमेज है तो आपने यहाँ से लिया है। तो अगर ऑलरेडी फाइल सबमिटेड है तो आपको उसमें रिमूव करना है। और आप जब देख रहे हैं ये यहाँ पर सोर्स ऑफ टाइप दिखते हैं, तो 3 टाइप्स होते हैं। ऐसे का मीनिंग होता है स्कूल असाइनमेंट, दूसरा होता है वेबसाइट या इंटरनेट से लिया है, और तीसरा होता है जर्नल से। तो जिन सोर्स से
आपने ये लिया है वो सोर्स का टाइप आपको यहाँ पर दिखाएगा, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरा डीप आएगा कि भाई सपोज ये 51.29 स्कूल असाइनमेंट है, वो किसी स्टूडेंट का ही है, अपना ही है, सेल्फ प्लेजरिज्म है। तो यू कैन जस्ट क्लिक दिस साइड, यू कैन रिमूव योर ऑल जो आपने फाइल अपलोड की थी उसको आप रिमूव कर दीजिए, और उसके बाद जो आपका परसेंटेज वैल्यू आता है वो आता है आपका एक्यूरेट प्लेजरिज्म। तो ये बात थी कि भाई किस तरह से ओरकुंड और टर्निटिन में कोई भी रिसर्च पेपर या थीसिस अपलोड करते हैं तो उसमें क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, उसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट क्या होता है, तो ये मैंने आपको बताया। एक और बात आपको बताऊंगा, सपोज मैंने एक थीसिस अपलोड किया है, वो थीसिस मैं टर्निटिन में अपलोड करता हूं, उसके बाद मैं ओरकुंड में करता हूं, एंड देन अपलोडेड इन ऑथेंटिकेट प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर। वी होप के रिजल्ट इज सेम but it is different. Orkun, it may post 10%, Turnitin may be declared 15%, and Authenticate show more than 20+% of the thesis. So how it is possible? Because it is depends upon the agreement between the software company and the publisher pages. अगर आपकी एक कंपनी ओरकुंड है, उन्होंने 50,000 पेजेस या टेक्स्ट के लिए एग्रीमेंट किया है तो वो उसी से मैच करेंगे सिमिलरिटी। टर्निटिन ने 100 पब्लिशर के साथ टाइप किया है तो उसी में वो चेक करेंगे, और ऑथेंटिकेट ने अगर 120 पब्लिशर के साथ टाइप किया है तो वो जो सिमिलरिटी जो आपका थीसिस या पेपर रिसर्च वर्क का जो चेकिंग होगा वो उसी के पेज से थ्रू करेंगे। तो यही एक रीजन होता है कि वी आर शो द डिफरेंट रिजल्ट इन डिफरेंट प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर। एक और बात बताना चाहता हूँ, से यूजीसी या एम्प्लिबनेट ने मैंडेटरी कर दिया है कि आप जो भी आपकी थीसिस आपकी यूनिवर्सिटी में सबमिट करेंगे वो थीसिस कंपलसरी आपको शोध गंगा पे अपलोड करनी पड़ेगी। क्या है ये शोध गंगा? तो शोध गंगा एक इंडियन थीसिस की एक रिपोर्ट बिजनेस स्टडीज जहां पर जो भी इंडिया की यूनिवर्सिटी में जो भी पीएचडी थीसिस या रिसर्च वर्क हुआ है उसकी सॉफ्ट कॉपी यू मे बी सेंड द इम्प्लिबनेट और MOU with the Implenet for the Shod Ganga, and you can upload this thesis in the soft copy in your website or Implenet 088 तो ये शोध गंगा आपको पूरे इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी के 088 अपलोड हुए हैं वो आपको दिखाएंगे। PGDS इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि जब आप एज ए रिसर्चर है या रिसर्च गाइड है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप वहां पर बैठ के सारी यूनिवर्सिटी के थीसिस या चेक कर सकते हैं ताकि आपका रिसर्च है वो डुप्लीकेट ना हो पाए। तो ये एक शोध गंगा बहुत ही अच्छा इनिशिएट है इम्प्लिबनेट का, और ऑलरेडी भाई काका लाइब्रेरी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने 2012 में MOU कर दिया था और मोर देन 260 प्लस थीसिस आर अपलोडेड इन द शोध गंगा।
तो ये कुछ मैंने बात बताई आपको शोध गंगा के बारे में। तो पहले तो ये भी एक बात बताना चाहता हूं मैं कि भाई ये जो प्लेजियरिज्म होता है, हाउ वी कैन अवॉइड द प्लेजराइज। बहुत सिंपल लॉजिक है इसका, आपको कुछ नहीं करना है, बी होनेस्ट। बस आप ऑनेस्ट बने रहे। आप जिसका भी सोर्स या जिसका भी वर्क जो आप 7164 अपने रिसर्च में 088 यूज करते हैं, 069 उस रिसर्चर या कंट्रीब्यूटर को आप अपने पेपर में क्रेडिट या एक्नॉलेज कीजिए। तो ये एक कंपलसरी प्रोविजन है फॉर द अवॉइड ऑफ प्लेजरिज्म। और दूसरी बात ये भी है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो हम पैराफ्रेसिंग कर देंगे, लेकिन पैराफ्रेसिंग भी इसका कोई इलाज नहीं है। अगर किसी के आइडिया और इंटेलेक्चुअल वर्क का आप पैराफ्रेसिंग करके आप अपने पेपर में इंप्लीमेंट करेंगे तो इट इज ऑल्सो कॉज ए प्लेजरिज्म। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर कोट है, साइट है, वो आपको प्रॉपर होने चाहिए। प्रॉपर साइटेशन फॉर्मेट जो होते हैं, जैसे MLS है, फिर शिकागो है, AP है, APA है, तो यू कैन पुट योर रेफरेंस as a proper style format which is also avoid the plagiarism। तो ये कुछ बातें थी जो प्लेजरिज्म को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो साइटेशन के लिए कुछ और भी जो सोर्सेस अवेलेबल है, ये जो मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है और ऑनलाइन पे फ्री है। तो साइटेशन के लिए मैं बताऊंगा कि भाई 3 टाइप्स के अभी सोर्सेस अवेलेबल है विच कॉल द रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जोटेरो, सेकंड इज मेंडली एंड थर्ड इज एंडनोट। These three are the reference management tools. This is the Zotero. It is a free open source software for the reference management. It is a bibliographical software. First of all, you can download and storing the reference, creating new references, adding references, citations to your paper in MS Word, collaboratively write paper using cloud data storage, and it is a very easy to use. It is very user friendly software for the bibliographical software. You can just download, install and start your bibliographical work as a there are so many format are available, like conference proceeding, newspaper, video, Facebook, Twitter, blog. You can just click and add your references and make your bibliography perfect. Second one is the Mendeley. It is also very famous academic software. It is also free. It is used for you can manage your paper, share your paper, read annotated or cite your research paper, research network to manage your paper online, discover research trend and statistics. All are facility are available in this academic software called Mendeley. One more thing, when as a faculty or researcher we are always in search of fund, and basically we are depends on the UGC या FISH, DRDO, DNST या BARC or some other well-known institute. But nowadays you can check the Mendeley. There are so many funding NGO institute are available. You can check with your project, your research
article, yeah, major minor project, there are so many funding institute, NGO are available, and it is start from the $1,000 to 1 lakh, yeah, $1,000 or pound. So you can just check the Mendeley for the funding. It is also very good sources are you can show in the Mendeley. One more reference for management tools is EndNote. It is also easy to use for the bibliography or citation. So these three, Zotero, Mendeley, and EndNote is reference management tools which are available free of cost on online. आप जब अपना रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो आपको देखना चाहिए कि आज इन करंट ट्रेंड या प्रेजेंट सिचुएशन में किस चीज या किस टाइप का रिसर्च की डिमांड है, तो आपको कैसे पता चलेगा? यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द करंट कंटेंट ऑफ योर सब्जेक्ट. What we are dependent on the periodical or journals, but due to lack of budget or financial crisis, we are not able to search all the journals which are related with our subject. Now what we can do, just you can go to the journal TOC, journal table of contents. It's the largest free collection of scholarly journal. Table of contents available on journal TOC. 35,922 journals, including 17,791 selected open access journal and 12,187 hybrid journal from the various 3,740 publishers journals. Data, yeah, table of contents are available on this website. So it is very useful for the researchers, students, librarian, and anyone looking for the latest scholarly articles. One more features in journal TOC is alert. If new issue arrive, you are follow the journals are published. तो जो भी करंट ट्रेंड है, आज रिसर्च किस तरफ जा रहा है, आज मैनेजमेंट में किस तरफ जा रहा है, तो ये सारे आपको जो आर्टिकल्स टेबल ऑफ कंटेंट से आपको पता चल जाता है कि भाई आज वर्ल्ड में जो रिसर्च का ट्रेंड है वो ट्रेंड किस ओर जा रहा है. तो यहाँ पर मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सारे सब्जेक्ट है, ये जर्नल्स के नेम है और यहाँ पर आपको सर्च ऑप्शन भी दिया है. तो बिफोर यू स्टार्ट योर रिसर्च या रिसर्च पेपर, यू कैन चेक table of contents of the approximate more than 35,000 plus journals and direct your research when and which type of research we may do. तो ये एक बहुत अच्छी सर्विस है, करंट कंटेंट सर्विस अवेलेबल है. इट इज अवेलेबल ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट. वन मोर थिंग, जस्ट 19 June 2019, UGC has declared Consortium for Academic and Research Ethics. Basically, we are known as a UGC Care List Journal. तो 19 जून 2019 से पहले जो भी आपके आर्टिकल यूजीसी लिस्टेड जर्नल में पब्लिश हुए हैं वो वैलिड थे. बट आफ्टर द 19 जून 2019, योर रिसर्च आर्टिकल मस्ट बी पब्लिश्ड in UGC के listed journal.
Otherwise, it is not allowed for your promotion, your appointment, or any academic work. So UGC has divided this UGC care list in two groups. In group 1, you can qualify for the UGC care protocols. Means अगर आप अपनी जर्नल कोई पब्लिश करते हैं तो यूजीसी केयर के कुछ क्राइटेरिया है. तो जो क्राइटेरिया में अगर आप फुलफिल हो जाते हैं तो आपका जो जर्नल्स होता है वो लिस्टेड ग्रुप 1 में आ जाएगा. और दूसरा है वेल नोन इंडेक्सेड जर्नल मीन्स ग्लोबली जो रिकॉग्नाइज है लाइक स्कॉपस, वेब ऑफ साइंस, तो विच आर इन यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 2. तो अब आपको जब आर्टिकल या रिसर्च पब्लिश करना चाहते हैं तो पहले आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि इज दिस जर्नल आर लिस्टेड इन यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 or 2. If not, then you can drop it. Why? Because nothing the value without the published in UGC care list. तो ये भी एक यूजीसी ने अच्छा एक प्रोविजन एथिकली रिसर्च एथिक्स के लिए किया है और इसमें भी अपडेट आते रहते हैं, तो यू कैन चेक. और बहुत सिंपल सा है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो टू द वेबसाइट, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ, यू कैन साइन अप and see the various subject which you choose, and there are so many journals are available within the country or within the world. So I request to all, it is a free of cost and it is a very good. And when you are promote or when you go for the appointment or academic promotion, you must be publish your research work in UGC care listed. Otherwise it is not any types of the help to you. एक इससे क्या होता है, पहले क्या होता था मालूम है? ऐसा क्यों होता है? ये प्लेजरिज्म होता है, रिसर्च फ्रॉड होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है. ये सब होता क्यों है मालूम है आपको? एक सिंपल सा लॉजिक है इसमें. अपॉइंटमेंट के लिए और दूसरा प्रमोशन के लिए. तो इससे क्या होता है कि वी आर गो फॉर द क्वांटिटी, नॉट गो फॉर द क्वालिटी. सपोज एक सिंपल सा लॉजिक है कि भाई 20+ आर्टिकल पब्लिश किए हैं, 40+ आर्टिकल पब्लिश किए हैं, तो ये नंबर गेम है. तो नंबर गेम के लिए ये सारे एथिक्स कभी कभी हम छोड़ देते हैं कि भाई चलो हमें भी ये ग्रुप में आना है, हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी आगे प्रमोशन लेना है, वी आर क्वालिफाई फॉर द सो एंड सो. सो इट मे कॉज द मिसकंडक्ट ऑफ द रिसर्च. So we are go for the quality, not for the quantity. One more term are used in the research. Fair use. Fair use is a state under the copyright law that allow for the use of the limited portion of the work that has copyright without having to have permission from the original author. तो फेयर यूज में आप किसी भी कॉपीराइट मटेरियल का यूज कर सकते हैं, लेकिन इट्स लिमिटेड ओनली फॉर द यूज ऑफ एजुकेशन और रिसर्च पर्पस. You cannot use fair use for the commercialization. If you can do commercialization, Copyright Act may be affected. Only for the purpose of the education and research, you can copy some content of the copyright work with limited portion. But what is the meaning of the limited portion? 10%, 20%, 5%, 2%, 50%. It is depends, not clear. So when you use fair use, you can use it only for the education
and the research with the limited portion. One more misconduct raised when we are doing the research, it is simultaneous submission. If you know, authors have an obligation to make sure their paper is based on original, never before published research. Intentionally submitting or resubmitting work for duplicate publication is considered a breach of publishing ethics. आप जब भी कोई पब्लिशर के पास किसी जर्नल में जब अपना आर्टिकल या रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए भेजते हैं तो आपको एक क्लैरिफिकेशन या डिस्क्लेमर देना पड़ता है कि आपका ओरिजिनल वर्क है, इससे पहले आपने कहीं और जगह पे उसको सबमिट नहीं किया है और साइमल्टेनियसली इसको पैरेलल कहीं और जगह पर या किसी और जर्नल में भी उसको सबमिट नहीं किया है। तो ये भी एक साइमल्टेनियस सबमिशन भी वन मोर इज द टाइप्स ऑफ द रिसर्च एथिक्स. Simultaneously submission occur when a person submit a paper to different publication at the same time. कई लोग ऐसा करते हैं कि एक अपने पेपर को 2-3 जगह पे बेच देते हैं. क्यों बेचते हैं? क्योंकि सबका टाइम लिमिट अलग अलग होता है. किसी में रिव्यू, ब्लाइंड रिव्यू, डबल रिव्यू, पीयर रिव्यू, कई टाइप के रिव्यू होते हैं. तो इट्स टेक्स सम मोर टाइम. So researcher can send one paper into more than 2 or 3 publishers. तो जहां से उसको पहले हरी झंडी आएंगी, अलाउ होगा या एक्सेप्ट होगा तो उसको पब्लिश कर देंगे. लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके रिसर्च एथिक्स के विरुद्ध में है. तो एक जगह पर आपको एक ही जगह पे सबमिट करना है. कई जगह पे हमने ऐसा भी देखा है कि 2 और 2 से ज्यादा पेपर जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव सेम है, हाइपोथेसिस सेम है, आपका रिजल्ट सेम है, डिस्कशन पॉइंट सेम है, लेकिन विदाउट क्रॉस रेफरेंस यू मे पब्लिश्ड, इट इज ऑल्सो कॉज ए मिसकंडक्ट ऑफ द रिसर्च एथिक्स. तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. आपको एक जो पेपर होता है उसके जो डेटा या ऑब्जेक्टिव या मेथोडोलॉजी है उसको चेंज नहीं करना चाहिए और उसको एक ही बार आपको पब्लिश करना चाहिए. अदरवाइज ये जो आप करेंगे वो डुप्लीकेशन ऑफ पेपर होगा और ये रिसर्च एथिक्स के विरोध में आ जाएगा. एक दूसरा भी आजकल मेजोरिटी जो चल रहा है, research fraud. What is research fraud? Research fraud is publishing data or conclusions that were not generated by experiments or observations, but by invention or data manipulation. तो ये आजकल बहुत चल रहा है. कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करो, कोई भी ऑब्जर्वेशन ना करो. यू कैन जस्ट ड्रॉ योर क्वेश्चनर, यू फिल डेटा एंड गिव द रिजल्ट. सो व्हाट इज दिस? इट इज अ रिसर्च फ्रॉड. विदाउट एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन और एनी यूज ऑफ द रिसर्च मेथड या टूल्स, you cannot allow the research. This causes the research fraud. 2 kinds of research frauds are available. One is fabrication. Fabrication means you can make your research data and you can make up your result. आपको कैसा रिजल्ट चाहिए वो पहले आप रिजल्ट ड्रॉ कर लीजिए और उस रिजल्ट के हिसाब से आप अपने डेटा सेट कर लीजिए. तो ये हो गया आपका फैब्रिकेशन. मेकिंग ऑफ रिसर्च डेटा एंड रिजल्ट एंड रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग देम.
तो कई सारे पेपर्स और थीसिस में हम ऐसा देख भी सकते हैं, लेकिन इट इज अ वेरी बैड. वन मोर रिसर्च फ्रॉड, falsification. Falsification means manipulating research materials like data, image, equipment or process. So falsification includes changing or omitting data or results in such a way that the research is not accurately represented. जब आप अपने रिसर्च में जो आपके पास ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट से आपको जो डेटा आपको मिला है और वो डेटा से आपको जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट से आप खुश नहीं है, या आपने जैसा बिलीव किया था कि दिस टाइप ऑफ रिजल्ट वी मे गेट बट द रिजल्ट इज ऑपोजिट दिस, द व्हेन मैनिपुलेटिंग of the research material we can do, and we are manipulate the data, and this it is effect on the result, and result will be changed. So this type of falsification is also research fraud. Both fabrication and falsification are serious form of the misconduct because they result in a scientific report that does not accurately reflect observer truth. इससे फैब्रिकेशन और फॉल्सिफिकेशन से कहीं सारे जो रिजल्ट हम मैनिपुलेटिंग करते हैं और उस रिजल्ट के बेस पर हम किसी प्रोडक्शन या किसी सर्विस पे अगर कोई सोसाइटी के लिए यूज करते हैं तो उसका हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि इसका हमें बहुत ही बुरी तरह से उसका जो रिजल्ट आएगा वो अनबिलीवेबल है. तो नेवर फैब्रिकेट और फॉल्सिफिकेशन ऑफ योर डेटा. यू कैन एक्यूरेट ऑफ योर रिजल्ट. यू कैन गो विद द ट्रूथ विद एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. One more thing is salami slicing. It is also called the redundant publication. The slicing of research that would form one meaningful paper into several different papers is called the salami publication or salami slicing or redundant publication. एक मीनिंगफुल पेपर में से कहीं सारे आप पेपर बना सकते हैं, लेकिन इस कॉल्ड द रिडंडेंट पब्लिकेशन. इट इज ऑल्सो द डुप्लीकेट पब्लिकेशन which involve reporting the exact same data in two or more publications. Salami slicing involve breaking up or segment a large study into two or more publications, and this segment are called slicing of the study. As a general rule, as long as the slice of a broken up study share the same hypothesis, population, and methods, this is not acceptable practice. The same slice should never be published more than once. तो ऐसा नहीं होता है कि जो आपने एक बार डेटा, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, मेथड को यूज करके आपको एक पेपर में से कहीं सारे सेम ये सब सारी रिसर्च प्रोसेस को रख के अगर आप पब्लिकेशन करते हैं तो ये पूरा आपका सलामी स्लाइसिंग या रिडंडेंट पब्लिकेशन उसको बोलते हैं. तो लास्ट में मैं यही बताऊंगा कि हमें एथिकली ये रिसर्च और पब्लिकेशन क्यों करना चाहिए. तो इसमें पहला है कि टू एंश्योर द साइंटिफिक प्रोग्रेस. Truth is the base of the science and the progress of ideas. Scientific community thrives only when each participant publish with the integrity. कोई भी आप रिसर्च किसी आप साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट या प्रोग्रेस या ट्रूथ या ऑब्जर्वेशन के बेस पर नहीं करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट पूरा फ्रॉड है. तो इस फ्रॉड रिजल्ट से आप अपनी कम्युनिटी को आगे नहीं ले जा सकते हैं. तो पहले आपको एज ए रिसर्चर आपको
कुछ एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, उसमें से ये पहला है इंश्योर साइंटिफिक प्रोग्रेस। सेकंड है इट प्रोटेक्ट लाइफ एंड द प्लैनेट। Publishing ethically ensure that we have trusted information on which to build future. जब हम एथिकली कोई रिसर्च या पब्लिकेशन करते हैं और उसी के बेस पर हम किसी सोसाइटी की रचना या फ्रेम करते हैं, तो इसका जो आउट या वेल्थ क्रिएशन होता है वो साउंड होता है। बट when your research or published work based on the fraudulent data can form an inappropriate basis for follow-up studies leading to patients, community or habitats. तो आप रिसर्च एथिक्स और पब्लिकेशन के थ्रू आप अपनी लाइफ और प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है it promotes ethical behavior. Doing the right thing, set an example and reinforce our responsibility to our peers and society at large. Ethical behavior को हमें प्रमोट करना है, रॉयल्टी होनी चाहिए, अपने एक्शन में बिलीवनेस होना चाहिए कि we are the different from the other and we are go with our ethics, we are promote our ethical behavior for the society. 4 is the good for your reputation. इसमें आपको पता ही है, अगर आपका पेपर किसी अच्छे जर्नल्स में पब्लिश होता है तो आपको क्रेडिट मिलती है, एक रेप्यूटेशन होता है, एक्वॉर्डेंस होता है आपके जॉब में, और मेजर माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट मिलता है तो एक रेप्यूटेशन क्रिएट होती है एज ए रिसर्चर, एज ए इन्वर्टर और एज ए स्कॉलर। लेकिन अगर आपने फ्रॉडुलेंट या फ्रॉड डेटा यूज करके किया है तो इट्स मे बी पार्ट ऑफ द माइनॉरिटी हु एंड अप विद द रिट्रेड पेपर एंड द टर्निश्ड रेप्यूटेशन। सो ऑलवेज make your good reputation with your ethics on research. And last, it's the only way. If you see your future bright and good and wealthiest nation, you can go for the good reputation, and good reputation is done by the ethically use in your research. So this 5 reason is published ethically to our research. तो ये सारी चीज मैंने जो कुछ एथिक्स होते हैं वो एथिक्स अपने रिसर्च और पब्लिकेशन में होने चाहिए, इसके बारे में बताया। एक और बात बताऊंगा, जब आप कोई अपना आर्टिकल किसी जर्नल में पब्लिश करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टारगेट योर जर्नल। आप उसके हिसाब से आप अपना रिसर्च पेपर या रिसर्च वर्क फ्रेम कीजिए। देन यू कैन चेक द गाइडलाइन फॉर द ऑथर ऑफ अबव जर्नल्स। क्यों ऐसा होता है? ईच एंड एवरी पब्लिशर हैव देयर ओन एथिक्स फॉर द पब्लिकेशन एंड रिसर्च वर्क। सपोज ये जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन बताया पूरा, जो इसमें मैंने रिसर्च एथिक्स के बारे में कई सारे बात की, वो मैंने एल्सवेयर का जो एथिक्स ऑन पब्लिकेशन रिसर्च है उसके हिसाब से मैंने ये लिया है। अगर आप स्प्रिंगर का देखेंगे तो उसका अलग होगा, विले का अलग होगा, ट्रेलर एंड फ्रांसिस का अलग होगा। तो ईच एंड एवरी पब्लिशर्स हैव देयर ओवन एथिक्स ऑन रिसर्च एंड पब्लिकेशन। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एज ए रिसर्चर पहले आप रिसर्च एथिक्स के बारे में क्लियर और कॉन्क्रीट कर हो जाइए कि भाई इसमें अपने रिसर्च या कोई आर्टिकल में हमें किस किस बात को
ध्यान में रखना है, कैसे करना है और किस चीज को अवॉइड करना है। तो ये सारे आप जो मैंने फैक्ट्स आपको बताए हैं, तो इसको आप अवॉइड करेंगे या ऐड करेंगे तो इससे आपका जो रिसर्च आउटपुट होगा वो वेल होगा और जो रिजल्ट होगा वो ओरिएंटेड होगा और आपने जैसा सोचा है उसका होगा। तो थैंक यू वेरी मच to give me opportunity to share my views on the ethics on the research and publication. I am really thankful to Dr. Bhatt Sahib and Dr. Kamini Madam and the faculties and the students of the Department of the Business Study on the behalf of the MyStack. Thank Thank you very much, sir. It was indeed a very useful and comprehensive discussion on research ethics and plagiarism. I'm sure it is going to be useful to all researchers. And there are a few questions, sir, which I would like to ask you on behalf of the participants. The first question we have in the chat box is, all UGC care listed journals are free of cost? No. All the UGC care listed journals are not free of cost, but you can just see the bibliographical record. What is bibliographical record, sir? Bibliographical records means just you can go to the UGC care list site. First of all, you can register yourself on the UGC care list journal. Then go to the UGC care list. There are so many options are available like subject, faculties, author, title. So you can go as per your required data and just click it. You can get the information about the journal. Like title, author, publisher, editor, publicity, subscription rate, periodicity. So this called the bibliographical data. There is another question here. Is the journal TOC larger than Google Scholar database? Yes, definitely. Because there are so many journals are available in journal TOC. So majority of journals are available on the Google Scholar, and Google Scholar is free of. So it may be include that journal TOCs, all the journals. Okay. Then there is a question. Probably this is from our university participants. I think that which are the database available in our Vaikaka library, which can be used for research? There are so many databases or resources available in our Vaikaka library. You know the Sodh Sindhu, which are the e-resources available through the ImpleNet. Approximate more than 15 plus publishers, journals and database are available through in the various university. Our university is also right to access some publisher like Springer, Wiley, Web of Science, American Chemical Society, Math Science Net, and more than low database and free of journals are also getting the access through the ImpleNet. So these are the resources available in our website. We have also our portal, separate portal. You can search it, go to our university website and then go to the Vaikaka library and go to the collection. There are already available collection in our web pages. Okay, now this question I'm asking on behalf of our PhD scholars, that is there any procedure to get registered to use this database with the Vaikaka library, or just we have to Google it? No, these are the facility available on the premises on the university, because the ImpleNet is provided these resources on the IP-based network. And it is available only the university's IP base
if you want to access in your own hometown or workplace, others you may be login for the remote login, and it is the subscribe from the outside, and it may cost them approximate more than 2 or 3 lakh. So we may not subscribe for the remote login. So if you want to access these resources, you can come to the department, library, premises of the university, and you can easily access all the resources provided by the implement to our Bhayakaka Library or SP University. Is it requiring any login, something or user ID from the library or from the department? It can be accessed without any such formalities? No, there is no need to register yourself, because we are already sent our IP to the publisher, and they are openly access this access their content to this IP. So you can just click on this and access your required content. Okay, there is a question. If one is not acknowledging the original study or research, what action can be taken? It is UGC has already declared with the punishment. So, and each and every university their own policy for the punishment, and the credit goes to the PhD declaration and the plagiarism portion. So it is depends upon the institute. Okay. Now, sir, you mentioned that Urkund is available to even all the students, faculty, everybody. So if somebody is checking their research paper or thesis content in the Urkund on their own, is there any facility to remove the contents from the Urkund database? The reason this question has been asked is because once the thesis will be submitted to the library will also use the same software to check if this is, and it may give 100% similarity. Yes, definitely it is a there are, I also saw in my presentation and go to the Orkund analysis, when you are already submitted your file in once in Orkund, then after you may be revised and then uploaded. So first of all you go to the source and then remove the when you first uploaded your file, and it when remove this first uploaded file, you can get the result of the your clear of the second plagiarism report. So it is go for the abort from your Orkund site, and it is facilities available, and I could already see the in your analysis, so you can remove it. So thank you very much, sir. These were the questions from the participants. Now one information to all the participants. Thank you for joining us for such a wonderful and useful webinar today. And the feedback link will be activated soon after this lecture. Here in the chat box, you can see the link, and it will be active till 3 p.m. today. And it is mandatory for certificate. Webinar is available to watch it again on YouTube channel of PG Department of Business Studies, as it is very useful. I think it is going to be mandatory for all the PhD scholars to listen to this webinar content once again on and often while writing or attempting to write some research paper or writing their thesis, etc. So once again, thank you, Mandaliya sir, for comprehensive discussion on authorship, concept of plagiarism, discussion on softwares like Urkund, Turnitin, then the concept of fair use, simultaneous submission, research fraud, salami slicing, etc. Our head and dean is also conveying best wishes and thanks for conducting this webinar today for our research scholar. Thanks once again, Mandaliya sir and the university. Thank you. Thank you all participants once again. Thank you. We shall definitely reconnect for once again some other useful webinar. You can give in the feedback if some topics webinar you want us to organize. Thank you once again.